الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 اور 2 فقدرہ تقدیرا. سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 48 اور اسی طریقے سے سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی آیت نمبر 23 24 اور 25 فقدرنا فنعم القادرون اور ہم بہترین تقدیر بنانے والے ہیں. سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 3 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور سال بھر کی تقدیر بانٹی جاتی ہے. سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 اور 4 فیہا یفرق کل امر حکیم بلکہ ہر دن بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا اور تقدیر کی اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. سورہ نمبر 97 مکمل سورت ہی سورۃ القدر یعنی تقدیر سے متعلق ایک مکمل سورت ہے. اور اسی طرح احادیث میں اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 597 سے لے کر اور جلد نمبر 9 حدیث نمبر 20 تک اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو پورے تقدیر سے متعلق ہے. تو انشاءاللہ آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تقدیر سے متعلق اور خاص طور سے شب قدر سے اس کا کیا رشتہ ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شکریہ محترم. ناظرین اسی بیچ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محترم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا. ہماری ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ ہے. بہت شکریہ. بتائیے کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں معین الدین انصاری یو پی بلیا سے بول رہا ہوں. معین الدین انصاری صاحب یو پی بلیا سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ شب قدر کی عبادت کا جو متعین وقت ہے جی کب سے کب تک کا ہے؟ اچھا جی. اور دوسرا سوال ہے کہ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ مطلب کوئی شخص اگر شب قدر لگے ہاں جی تو کیسے پتا چلے گا کہ مطلب وہ شب قدر کی صحبات اس کو حاصل ہو چکے ہیں؟ بہتر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب. بتائیں شب قدر کا وقت یہ تعین یہ کب سے کب تک ہم شب قدر کو تلاش کر سکتے ہیں. دوسرا کیا علامات ہیں جو شب قدر جسے نصیب ہوئی ہے وہ یہ جان لے کہ وہ خوش قسمت ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب قدر سے متعلق نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے شب قدر سے متعلق ایک مکمل صورت نازل کی ہے جس کا نمبر ہے 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. کہا کہ اس سے بہتر ہے یعنی مطلب کتنی بہتر ہے؟ 83 سال سے زیادہ. یعنی ایک شخص اگر 83 سال عبادت کرے گا اس کے اندر 83 مرتبہ حج آتا ہے 83 مرتبہ رمضان مبارک 83 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر یہ ایک رات کی عبادت ہے. اور صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 115 سے لے کر 225 تک مسلسل احادیث رمضان مبارک اور لیلۃ القدر سے متعلق احادیث آئی ہیں. تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کس طریقے سے پہچانی جائے. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر پرٹیکولر طور پر ایک رات بتا دی گئی تھی لیکن 2 صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بحث اور مباحثے میں ان کو معاملہ سلجھانے تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات بھلا دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس کے اختلافی مسئلوں میں زیادہ نہ پڑے. ایک خالی اختلافی بحث جھگڑا تو دور کی بات ہے صرف بحث کی بنیاد پر اتنی بڑی نعمت چھین لی گئی تو اگر خون خرابہ یا اختلافات ہوتے ہیں تو اس سے اور بھی دور ہونا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کے طور پر اس رات کو بھلا دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہا کہ تم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آخری دہا جو رمضان مبارک کا آخری 10 دن ہوتے ہیں فی وتر من اللیالی اس کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 21 23 25 27 29 اس کو پہچاننے کی شکلیں ویسے تو لوگ کئی باتیں بتاتے ہیں جس کی کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. البتہ 2-3 باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس رات موسم ذرا خوشگوار رہے گا
हर जगह का अलग अलग अंदाज का खुशगवार मौसम होता है, उस लिहाज से एक बड़ा खुशगवार मौसम रहेगा। लेकिन ये जानने के लिए कि खुशगवार मौसम कब है, तब भी आपको 5 रातें जागनी पड़ेगी, क्योंकि 5 रातों में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा खुशगवार मौसम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशगवार मौसम महसूस करते ही बाकी की रातें ना जागे। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरे दिन जब सूरज तुलू होगा तो वो बिल्कुल लाल रंग का सूरज तुलू तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर उतनी गर्मी या तमाजत नहीं रहेगी, एक नॉर्मल अंदाज से, यानी यूं समझिए कि उसकी रोशनी थोड़ी सी धुंधलाई भी रहेगी। जैसा कि बाद उलमा ने कहा कि फरिश्तों की कसरत इतनी होती है कि जब वो वापस जाते हैं तो सूरज पर तक उसका असर पड़ता है। तो ये है, बाकी के कुत्ते नहीं भोंकते, ये सारी बातें बेकार हैं। तो शब कदर के पहचानने की ये अलामतें साबित है। इबादत क्या करनी चाहिए? हर वो इबादत जो जायज है और साबित है कुरान और सही अहादीस से। नफिल नमाज आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप तरावी पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत, इल्म भी हासिल किया जा सकता है, बयानात का सिलसिला भी रखा जा सकता है। इल्म हासिल करना नफिल इबादत से अफजल है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। खास तौर से एक दुआ जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सीखी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मोहतरम। नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये कुछ सवाल पूछना था। मैं मलावती से बात कर रही हूँ, ज़ैनब। जी मौलाना साहब से ये पूछना था, मुफ्ती साहब से, कि अभी आपने बताया कि इल्म हासिल कर सकते हैं, क्या ये बच्चे दुनियावी इल्म भी पढ़ सकते हैं? बहुत बहुत फास्टेस्ट आपका रिस्पॉन्स रहा भाई। ये सवाल पर आपने सवाल कस दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कि दुनियावी तालीम जो चल रही है, ये क्या वो तालीम हासिल कर सकते हैं? बेहतर बेहतर बहन साहब। और एतिकाफ में भी ये पढ़ सकते हैं क्या? बच्चों ने मुझे सवाल किया है घर में। अच्छा जी, तो जब एतिकाफ बैठना चाह रहे हैं, जैसे इम्तिहानात आ रहे हैं दूसरे नवंबर 5 से जी जी, एग्जाम की तैयारी करेंगे बच्चे। ठीक है, बताते हैं आपकी बात ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद से कि इस वक्फे के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। तू ही खालिक, तू ही राज़िक़, और तू ही मुहय्यी व मुमीत। तू ही खालिक, तू ही राज़िक़। जिसने शब कदर में इशा और फजर जमात के साथ अदा की, उसने शब कदर से खूब हिस्सा पा लिया। रवा मुश्किल कुशा माबूद है तू, सबका हाजत रवा मुश्किल कुशा माबूद है तू। हमारे मुल्क में चैनल, मैगजीन और अखबार की कमी नहीं है, लेकिन किसी ने आपके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी ने आपकी सही तस्वीर पेश नहीं की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने दिया है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म। सारी दुनिया में मुसलमान जो है मसाइल का शिकार है, जहां आप बेबाकी से अपने मसाइल को उठा सकते हैं। किसी मेरिटोरियस या जो है एबल पर्सन को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अपने पहचान वालों को पैसे देकर इस तरीके से जो इंतजामिया ले रही है, ये माइनॉरिटी का नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करेगा। जहां होगी आपकी आवाज, आपकी अपनी आवाज। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और बाई बर्थ नहीं है, बाई चॉइस भी है। देखिए हमारे मसाइल सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया सितम याद न अपनी ही वफा यार, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा यार। जिगर मुरादाबाद, पैदाइश 1890, वफात 1907। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है शब कद्र से तकदीर का ताल्लुक। इसी मौजू पर बात चल रही है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, जानते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, मैं जाकिर से बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी मोहतरम। हम लोग को बोला गया है कि शबी कदर ताक रातों में ढूंढने के लिए जी, लेकिन अक्सर होता है कि इंडिया में हाँ 27वीं रात को ही बनाते हैं मस्जिदों में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी हाँ, बेहतर। तो इस पर क्या सवाल है आपका?
इसमें सवाल ये है कि 27वीं रात को ही क्यों मस्जिदों में लैलतुल कद्र मनाते हैं? बहुत बहुत बेहतर भाई, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नाजरीन, ब्रेक से पहले जनाब ज़ैनब साहिबा ने उनके बच्चों की तालीम से मुताल्लिक सवाल किया था। आइए जानते हैं मदनी साहब से क्या कहते हैं। मदनी साहब, कुरान के अलावा दीगर उलूम जो हासिल किए जाते हैं, क्या इस तरह की पढ़ाई भी जारी रखी जा सकती है? मसलन बच्चों के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई करने से भी क्या शब कद्र का सवाब मिलता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास 2 सवालात आए हैं। पहला सवाल तो बहन साहिबा ने किया कि क्या दुनियावी तालीम जो बच्चे कॉलेज वगैरह में हासिल करते हैं, तो क्या एतिकाफ में या लैलतुल कद्र में इसको हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इसमें बुनियादी तौर पर कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए कि कोई भी इल्म जो शरीयत से ना टकराए, कोई भी इल्म जो शरीयत से ना टकराए और उसके पीछे मकसद ये हो ताकि कल के दिन में इंसानियत को इससे फायदा पहुंचाऊंगा और इसी तरीके से जो बात हक है और दीन इस्लाम की बात है, मैं उसको पेश करने के लिए इस इल्म को भी दरिया बनाऊंगा, तो जाहिर बात है मकसद भी अच्छा है और शरीयत से नहीं भी टकरा रहा है। तो ऐसा इल्म आप लैलतुल कद्र में भी हासिल कर सकते हैं, रमजान में भी हासिल कर सकते हैं। और अगर जैसा कि मैंने कहा अगर शरीयत से नहीं टकराता है तो उसको मस्जिदों में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और भी पॉइंट, दूसरी बात यह है, जहां तक बात है कि पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप, चूंकि साल भर हम दुनिया की तालीम तो हासिल करते रहते हैं, लेकिन ये खास रातें हैं और ये खास मौके हैं जहां पर आप आखिरत के बारे में, अपने अमाल के बारे में, इसी तरह आपको कई ऐसी नॉलेज जो आपको नहीं होती है वो नॉलेज हासिल करने का बेहतरीन मौका है। तो ज्यादा तवज्जो आप इस बात पर दीजिए कि कुरान मजीद आपसे क्या चाहता है, उसका मुताला ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तिलावत का सवाब हासिल कीजिए, नफिल का सवाब ज्यादा से ज्यादा उसमें टाइम लगाए। तीसरा पॉइंट यह है कि हो सकता है किसी जहन में सवाल आए कि मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, आमतौर पर जुमला मशहूर है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। कुरान और सही हदीस से कहीं पर भी नहीं रोका गया है। हर वो दुनियावी बात जो इंसानों के फायदा के लिए है, जो शरीयत से नहीं टकराती, वो बात आप मस्जिद में भी कर सकते हैं, बाजार में भी कर सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, यानी खुलाफाए राशिदीन की जो खिलाफत का मामला तय पाया वो मस्जिद में तय पाया। हुदूद और ताज़ीरात के बड़े बड़े फैसले मस्जिद में हुआ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद को जो मुहिम रवाना करते थे, कुमक रवाना करते थे, मस्जिदों से रवाना करते थे। तो बड़े बड़े काम जो दुनियावी काम है वो मस्जिद से अदा हुए हैं। और जहां तक भाई ने दूसरा सवाल किया, इंशाल्लाह हम सवाल लेते हैं और एक फिर उसका भी जवाब देते हैं। शुक्रिया मोहतरम। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मजार भाई जी, भाईजान अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, आपके जज्बात को मैं समझ रहा हूँ। आवाज कम करो। हाँ सर, आवाज कम हो गया जी। सर, मदनी साहब के चेहरे पर कुछ मुझे दाग वगैरह दिख रहा है, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का फजल है, सभी ठीक ठाक है। जी बताइए क्या सवाल। वजू करता हूँ ना जी जनाब, बहुत परेशान हूँ। अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा, हाँ म्यूट हो गई। अच्छा, मैं कौन सुन रहा हूँ। जी। तो मैं जब वजू करता हूँ ना तो पानी बहुत खर्च होता है, जैसे पाँव वगैरह हो गए जो मतलब सर देते ना, उसको मैं ना अच्छे से रगड़ता हूँ, सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जैसे सामने वाले हैं मस्जिद में वजू करते हैं तो उन लोग थोड़ा तकलीफ होता है। गालिबन 10-15 मिनट वजू करने में जाता है, मैं रगड़ते रहता हूँ कि सोचता हूँ कि मतलब अच्छे से तर हो जाए, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम होता है। और जब मैं नमाज में नियत करता हूँ ना पहले, तो मैं नियत में 10-10 मिनट तक खड़े रह जाता हूँ। सही कहता हूँ, ठीक है, लेकिन जहन में तुरंत उसी टाइम ख्याल आता है कि शायद मैं नियत गलत किया या इस वक्त का नहीं किया या कजा का नियत किया, तो वापस मैं वही रिपीट करते रहता हूँ। इस वजह से मेरा 3-4 बार नमाज छूट गया हुआ, आसपास 1 महीना से बदले में, और गुनाह मिलेगा अगर छोड़ दूंगा। आप तो ऐसा कुछ मुझे तरीका बताओ, पानी कम खर्च हो, किया जाता है, सर ये क्या कहती है, अगर बराह रास्त करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएंगे, अपना नाम और मकाम बता दीजिए। अब्दुल रहमान जरीमरी से, मुंबई। अब्दुल रहमान साहब, बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन और एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, अल्ताफ बोल रहा हूँ श्रीनगर से। अल्ताफ जी, अल्ताफ साहब क्या हाल है? श्रीनगर से। कैसा है मौसम आपका? मौसम तो खुशगवार है। श्रीनगर कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। और मौलवी साहब से एक सवाल करना। जी बताइए। मौलवी साहब ने भी कहा था कि शब कद्र, अल्लाह शब कद्र के दिन तकदीर बनाता है जी, मगर जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो इसका तकदीर में लिखी जाती है। बिल्कुल वाजिब है आपका डाउट, बहुत सही डाउट है आपका। इसी पे थोड़ा कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें रहनुमाई कीजिए। बेहतर जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बताते हैं आपका। नाजरीन, आपको बता दें हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3454-026 और एसटीडी नंबर 08415305010। आइए जो सवालात हमारे पास मौजूद हैं ये जानते हैं मदनी साहब से। जकरिया साहब ने कॉल किया था हैदराबाद से, शब कद्र की रात 27वीं रात को ही क्यों मनाई जाती है, इस सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 सवालात आए हैं।
پہلا سوال یہ ہے کہ 27 ہی کو کیوں عام طور پر شب قدر کے نام سے منایا جاتا ہے؟ تو بھائی میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ فی الوقت ایسا نہیں ہو رہا ہے. اکثر جگہ پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ 21, 23, 25, 27 اور 29 پہلے کے مقابلے میں اب 5 تاخیراتوں کا اہتمام کافی وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اکثر گمان یہ ہے کہ شاید کہ وہ 27 میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 میں سے ایک رہے گی. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک مرتبہ جبکہ آپ کے عہد میں کہا کہ شاید کہ اس سال 27ویں کو ہوگی، یہ ایک امکان بنا جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی شاید پیدا ہو گئی ہے. یا اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات تاخرات یہ اس وقت پہ رہے گی جبکہ بارش ہوگی، اور اتفاق سے بارش کب ہوئی؟ جبکہ 27ویں تاریخ تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کہتے ہیں 27ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا اور سمجھ گئے کہ آج شب قدر ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنرل عام دنوں کے لیے یا عام آنے والے سالوں کے لیے کہہ دیا کہ تم 5 راتوں میں سے ایک کو تلاش کرو. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے. ویسے اس کے اندر 34 اوپینین پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے آتھینٹک احادیث کی روشنی میں یہ اوپینین ہے کہ آپ 5 میں سے تلاش کریں. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے طہارت کے بارے میں کہ بھائی کو چاہیے کہ زیادہ وسوسے میں نہ پڑے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جن کو طبیب القلوب کہا جاتا ہے یعنی کہ روحانی ڈاکٹر، تو انہوں نے یہ کہا کہ آدمی اگر وسوسے میں پڑ جاتا ہے، شریعت کبھی بھی وسوسے میں پڑنے انسان کو نہیں دیتی، کہتی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو تو آدمی خواہ کے شک کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے. اسی طرح کہا گیا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی تو خواہ کی شک کی بنیاد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آدمی وسوسے میں پڑھتے پڑھتے یہاں تک چلا جاتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کنکر کی طرح کھیلنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک یہ کہا کہ میں جانتا ہوں شخص کو کہ وسوسے میں آ کر وہ اتنا پاگل ہو گیا، اتنا مجنون ہو گیا، اور کئی مجنون ہوئے اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ وسوسے میں پڑے کہ وہ سمندر میں گیا، بھیگ کر آیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا میں نے پانی نہا لیا یا نہیں نہا لیا. تو اس طرح شک میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک تائیوان کے میرے ایک ساتھی تھے جو مدینہ سٹی میں پڑھتے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ آدھا گھنٹے تک وضو کرتے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو 1-2 مرتبہ اگر تمہارا وضو نہیں بھی ہوتا، مان لیجئے کہ تمہارا وضو نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی تم وضو کرے، چاہے تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، جب تم نے وضو کر لیا تو وہاں سے نکل جاؤ. 3-4 دن کے بعد تمہاری عادت بن جائے گی، نتیجے میں یہ بیماری چلے جائے گی. الحمدللہ ویسا ہی ہوا. 1-2 ہفتے کے بعد وہ بیماری اس بندے سے چلے گئی. تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے. شروع میں 2-3 دن آپ کو اگر شک بھی آتا ہے، وضو کرتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیے، آپ جا کر نماز میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کو شک آتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا، تب بھی آپ نماز جاری رکھیے. کچھ دنوں کے بعد وہ عادت آپ سے چلے جائے گی. اس طریقے سے انشاءاللہ وسوسے کی کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ تیسرا سوال بھائی کا تھوڑا تفصیلی ہے، میں بھی جواب دوں گا اور ایک سوال ہم لے لیتے ہیں. جی، الطاف صاحب نے سری نگر سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہم دیتے ہیں. دے دیں گے اس کے بارے میں کہ تقدیر جو ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھی جاتی ہے اس کی، اور پھر شب قدر کو تقدیر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ بہت اچھا. تو بھائی نے جو سوال کیا ہے تقدیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. تقدیر 5 مرحلے پر تقسیم کی جاتی ہے. 5 مرحلے پر تقسیم کی جاتی ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر آپ صحیح مسلم کی روایت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور اس کا حدیث نمبر ہے 1393، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ دنیا یہ کائنات پوری پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا. اس کو کہتے ہیں التقدیر الازل، یعنی پوری کائنات کی تقدیر ہے اس کے اندر. اس میں چرند پرند، پہاڑ پیڑ پودے، انسان جانور سب آگے. اس کے بعد دوسری تقدیر ہے جو انسانوں کے لیے خاص ہے. وہ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بتائی دوسرے مرتبہ مرحلے میں. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 172 کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پیٹ پر مارا گیا، اور جو جنتی اور جہنمی ہے وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے جانب سے، یعنی کہ ان کے پیٹ سے چھاتی پر اور پیٹ پر مار کر چونٹیوں کی شکل میں باری، جس کو عالم الدر کہا جاتا ہے، نکالا گیا. جنتی اور جہنمی بتلائے گئے، یعنی کون جنت میں جانے والا اور کون جہنم میں. تو یہ ہوا پورے انسانوں کی تقدیر. پھر تیسرے مرحلے پر ایک ایک انسان کی انڈیویجل تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ایک انسان کی انڈیویجل تقدیر کب لکھ دی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے حدیث صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 597 597. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن گزر جاتے ہیں. ایک حدیث میں 121 دن گزر جاتے ہیں، کبھی 120 دن میں، کبھی 121ویں دن آ کر جبرائیل علیہ السلام اس انسان کی پوری زندگی کی تقدیر بتا دیتے ہیں، یعنی کہ لکھ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک انڈیویجل ایک انسان کی ہے. آدم علیہ السلام کی بتائی گئی پوری انسانیت کی. ایک انسان کی پرٹیکولرلی بتائی جاتی ہے اس وقت پر، یعنی کہ مرتے دم تک کی پوری تقدیر لکھی جاتی ہے کہ وہ عمل کیا کرنے والا، اچھا یا برا، اس کا رزق اور وہ کب مرے گا. پھر اس کے بعد
ہر سال یعنی ایک انسان اگر 60 سال جیے گا تو اس کی پھر ہر سال الگ الگ انڈیویجول تقدیر بتائی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس لکھ کر رکھی جاتی ہے، جو فرشتوں کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے. ہر سال وہ کب ہوتی ہے؟ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں تقدیر بانٹی جاتی ہے. دلیل سورہ دخان سورہ نمبر 44 44 کی آیت نمبر 3 اور 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. مبارک رات سورہ لیلۃ القدر میں بتایا گیا، سورۃ القدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی مبارک رات لیلۃ القدر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر تقدیر بانٹی جاتی ہے. پھر سال کے اندر بھی ہر دن کی انڈیویجول تقدیر بانٹی جاتی ہے، وہ ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کے آیت نمبر 29. تو یہ 5 مرحلے پر ہے، امید ہے آپ کا جواب مکمل. تفصیلات یقیناً بتائیں گے. ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. ان بصیرت افروز لمحات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا. رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں علم و ادب کے شہر علی گڑھ میں، اترانچل کے ایک نہایت خوبصورت شہر ترکی میں، اجمیر شریف میں، ہندوستان کے دارالحکومت دلی شہر میں. آج ہم آپ کو احمد آباد لیے چلتے ہیں، سرزمین لکھنؤ پر آپ کا دلی خیر مقدم ہے. اس کے علاوہ ہر روز ایک نیا تاریخی شہر. مزہ لیجیے سحر و افطار کے لیے تیار کردہ لذیذ کھانوں کا، اور ایمان کو تر و تازہ کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں اس مرتبہ کیا ہے خاص؟ بات چاہے بدلتے فیشن کی ہو یا پھر کرتے پاجامے کی، خوبصورت جیولری اور چوڑیوں کی یا پھر دیگر پسندیدہ اشیاء کی. دیکھنا نہ بھولیں رمضان کی عظمت ہر پیر سے سنیچر رات 10:30 بجے اور اتوار کی رات 10:40 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں دواخانہ طبیہ کالج کا انگوری، آرس برادرز حیدرآباد سکندرآباد، مخدوم برادرز مدینہ، مخدوم برادرز بنجارہ ہلز حیدرآباد، ایکتا گروپ اور یونٹی ریئل اسٹیٹس اینڈ ڈیولپرز، چرماس حیدرآباد سکندرآباد اورنگ آباد اور وشاکھاپٹنم. GMP سرٹیفائیڈ یونانی دواساز کمپنی کا شکتینا. ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ. روزہ، تراویح، سحر اور افطار، شب قدر، فطرہ، زکوٰۃ اور عید الفطر کے احکام و مسائل پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی گفتگو. انجمن نسواں کی خصوصی پیشکش. دیکھنا نہ بھولیں روزانہ صبح 8:30 بجے ہندوستان میں اور 7 بجے UAE میں. صرف ETV اردو پر. تک چین کی مہلت دو گے، کب تک یاد نہ آؤ گے، کب تک یاد نہ آؤ گے. فیض احمد فیض، پیدائش 1911 سیالکوٹ، وفات 1984 لاہور. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. ناظرین اب سوال لیتے ہیں ایک کالر سے. ہیلو ہیلو. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. جی ہاں آگے خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. بھائی ہمارے محسن کا نام کیا ہے؟ جی ہاں میں بھینسا عادل آباد ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے نا. جی ہاں ابراہیم اللہ خان، میں ادھر ہوں. جی ہاں ابراہیم صاحب. جی ہاں جی ابراہیم اللہ خان بھینسا سے. جی جی ہاں جی ہاں صاحب میں یہ دریافت کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ جو لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے جی کی مصنون عبادات کیا ہونا چاہیے تھا اور اس کا طریقہ، مطلب کہ اکثر ہے تو یہ جو بڑی راتوں میں بیانات وغیرہ جو مساجد وغیرہ میں ہوتے تھا جی تو اس میں سمجھیے کہ کافی وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں ہی ہو جاتا ہے وقت کافی. تو کیا اس سے اچھا بھی سمجھیے کہ بیانات وغیرہ سماعت کرنے سے دوسری بھی عبادت کچھ بہتر ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی ہم پہلے بیانات وغیرہ سنتے ہوئے اور یا پھر اس کے بجائے کوئی دوسرے عبادت وغیرہ مصنون عبادت. جی 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 میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، آپ جو کہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ جی ہاں اور صاحب اور یہ میں جاننا چاہوں گا جس اگر کہ لیلۃ القدر کی جو شناخت، مطلب جو نشانیاں ہیں جی تو اس میں سے کچھ نشانیاں جو کہ سمجھیے ہم اس کی پہچان وغیرہ، یا پھر جیسا کہ ہم اکثر 27ویں شب کو ہی سمجھیے کہ لیلۃ القدر کی سمجھیے کہ اس کے مطلب اپنے خیال سے کیا جاتا ہے، یا پھر جی 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 تو یا پھر دوسرے ایسے کچھ نشانی جو کہ بیان کی گئی ہو یا ویسا کچھ اسی شناخت کے لیے اگر کچھ بتائیے تو مہربانی ہوگی. بہتر میں بتاتا ہوں. ابھی اب کے سوال کو پوچھتے ہیں کیا ہے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم.
जी जरा क्लियर और लाउड फरमाइएगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाजी की नमाज कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? तहज्जुद की नमाज, हेलो, किस तरीके से और कब पढ़ना चाहिए? अच्छा जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी शहनाज साहिबा, मुकाम बताइए। याकुतपुरा। अच्छा जी, याकुतपुरा हैदराबाद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इसी तरह से बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं। मदनी साहब बताएं कि शब कद्र से मुताल्लिक कोई मखसूस इबादत है या शब कद्र की निशानियां क्या है, और 27 पर ही इज्मा का क्यों इत्तेफाक है, ये बातें बता दें। और दूसरा कि बहन साहिबा का जो सवाल था इस बारे में भी बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो भी हमारे पास सवालात आए हैं 27वीं शब के बारे में, इससे पहले मैंने जवाब दे दिया है। एक सवाल जो भाई ने किया था वो ये है कि लैलतुल कदर की क्या कोई मखसूस इबादत है या नहीं। वैसे इबादत का हमारे पास डेफिनेशन पहले अच्छी तरह समझ जाइए। इस्लाम में इबादत कहते हैं हर वो बात, हर वो काम जो आप करते हैं दिखाकर या छुपाकर, हर वो बात और हर वो काम जो आप दिखाकर या छुपाकर करते हैं, जो कुरान और सही अहादीस के मुताबिक हो और अल्लाह सुब्हानो व तआला को राजी करने के लिए, उसको इबादत कहते हैं। इसके अंदर सारी चीजें आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां तक कि एक शौहर अपने बीवी के मुंह में लुकमा डालता है मोहब्बत से, तो कहा कि यह भी एक इबादत है। यहां तक कि एक आदमी निकाह करता है तो यह भी एक इबादत है। सहाबा इकराम ने पूछा कि आखिर यह बात कैसे होगी? कहा कि अगर वो शख्स हराम जगह पर अगर नुत्फा रखता तो क्या वो उसको गुनाह नहीं मिलता? इसी तरीके से अगर वो हलाल तरीके पर जाता है तो उसको सवाब भी मिलेगा। ये की बात है। तो इबादत एक वसी माना रखता है। इस लिहाज से हर वो अच्छा काम और हर वो अच्छी बात आप कीजिए उस रात में, जिससे कि अल्लाह सुब्हानो व तआला आपसे राजी हो जाए। खास तौर से बड़ी बड़ी बातों का हम जिक्र करते हैं तो नफली बातें हैं, नफली नमाजें हैं। और इसी तरीके से अगर आप रहेंगे सऊदी अरब में, जहां पर मौका मिलेगा तो आप वहां पर तवाफ कर सकते हैं, उमरा कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कुरान मजीद की कसरत से तिलावत कर सकते हैं। और इसमें बयानात सुनने का भी मशगला रखा जा सकता है, क्योंकि बयानात इल्म हासिल करने का एक जरिया है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या पढ़ूं? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछ रही हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं। ये खुद इल्म हासिल करने की एक बात हो रही है। तो इसका मतलब एक लाके तालीम हासिल करने की भी गुंजाइश है। लेकिन कुछ मौका तालीम के लिए, कुछ मौका नफिल इबादतों के लिए, तिलावत के लिए, इस तरीके से कई चीजें आपके पास इंशाअल्लाह जमा हो जाएंगी। ये एक सवाल हुआ। और तहज्जुद कैसे पढ़नी चाहिए? नमाज वैसी पढ़नी चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें सही अहादीस में मिलता है। और कब पढ़नी चाहिए? जाहिर बात है तहज्जुद के टाइम पर आप पढ़ेंगे तो तहज्जुद होगी, तरावी के टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे तो तरावी होगी। उम्मीद के बहन का जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मुदरी साहब। नाजरीन, बहुत सारे SMS शामिल मौसूल हुए हैं, लेकिन कुछ SMS इसमें शामिल करते हैं और जानते हैं क्या लिखते हैं। मोहम्मद मजहर साहब मेदक से लिखते हैं, वक्त न होने की सूरत में बगैर गुस्ल किए हुए सहर कर सकते हैं या नहीं? भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। ये आम तौर पर कई सहरी करने वाले और कई हमारे रोजेदार भाइयों को प्रॉब्लम आता है। सहरी करने के लिए गुस्ल शर्त नहीं है। जैसा नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल जरूरी है, वजू जरूरी है। अगर एक आदमी पर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल जरूरी है, वजू जरूर अगर उस पर वाजिब है, अगर उसके पास वजू नहीं है तो वजू करना है। ये नमाज के लिए। लेकिन सहरी करने के लिए गुस्ल और वजू की शर्त नहीं है। तो इंशाअल्लाह गुंजाइश है। इसकी कोई दलील नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि शर्त है, ये लोगों की गलत फहमी है। कोई शर्त नहीं है, बगैर गुस्ल के भी सहरी की जा सकती है। और दीगर SMS है, अबू मोहम्मद हुसैनगर कर्नाटका से लिखते हैं, क्या छोटे बच्चों का फितरा देना चाहिए? फितरा देने का वक्त कब से शुरू होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। फितरा कहते हैं, फितर से निकला है। फितर का मतलब होता है अरबी जबान में जबकि रोजे खत्म हो जाते हैं, यानी कि शहरुल सौम कहा जाता है, यानी कि रोजे का महीना रमजान मुबारक। शहरुल फितर कहा जाता है, यानी कि शव्वाल का महीना जो शुरू होता है। शव्वाल का महीना कब शुरू होता है? जैसे ही चांद नजर आता है, इसको फितर कहते हैं। फितर चांद नजर आते हैं, यानी कि अब रोजों की जो जिम्मेदारी थी दिन में, अब वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह फितरे का मतलब है, फितरा यानी उस वक्त पर अदा किया जाता है। ईद उल फितर यानी उस वक्त पर जबकि रमजान मुबारक खत्म होता है। फितरा उस वक्त पर खत्म करते हैं जबकि रमजान मुबारक खत्म होता है। चांद नजर आने के बाद से लेकर आप ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले ये जो टाइम होता है, ये टाइम में फितरा अदा करते हैं। उससे पहले 2 दिन की गुंजाइश मिलती है सहाबा इकराम के आमाल से। लेकिन बेहतर यह है कि आप चांद देखने से लेकर नमाज जाने से पहले तक इसको अदा कर दे। उसके बाद अदा करेंगे तो सदक़े फितर अदा नहीं होगा। इसकी हिकमत यह है कि जो क्वालिटी का आप अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, पैसे की शक्ल में मत दीजिए। एक गरीब के घर में कम से कम ये होना चाहिए कि ईद के दिन वो भूखा ना रहे। जो क्वालिटी का आप अनाज अपने घर में ईद के तौर पर, खुशी के तौर पर खाते और मनाते हैं, इस तरीके से गरीब के घर में भी पकवान होना चाहिए। ये उसकी हिकमत है। इसको पैसों की शक्ल में हरगिज मत दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में दीनार और दिरहम मौजूद थे, उसके बावजूद भी आपने पैसे का हो रहा है। भाई मुंबई में बहुत शोर हो गया रमजान जी, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी, सारी टाइम मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे हम तमाम को शब कद्र नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन जी।
जी, मेरा सवाल ये है कि जब औरतों के खास अय्याम अभी इन खास रातों में आते हैं जब वो नमाज अदा नहीं कर सकती, जी जी, तो अब इस वक्त हमें क्या हुक्म है? क्या इन रातों में हम वजू बना के कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं? बेहतर बेहतर, बहुत यही मेरा सवाल है। बेहतर जवाब दिया जाएगा। चलिए, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, यस जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, जी जी, सलाम वालेकुम। जी जी, बताइए कौन और कहाँ से? चिंचोली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। चिंचोली गुलबर्गा से, जी बताइए, आपका नाम बताइए। हेलो, हाँ, रुखसाना है मेरा नाम। जी, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है कि ज़कात के बारे में। जी बोलिए, क्या पूछते हैं ज़कात के बारे में? हमारे पास है ना पत्थर की घनी है और लारी है जी, उस पर ज़कात देना क्या जायज़ है? नहीं। पत्थर की घनी, हाँ, कान और गाड़ी है। जी जी, अच्छा, गाड़ी है के ऊपर फाइनेंस है 1 लाख का। अच्छा, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने और एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी, ये ताक रातों में क्या क्या इबादत करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताओ मदनी साहब। अच्छा जी, शब कदर में ऐसा क्या करना, क्या पढ़ना? अच्छा जी, बेहतर, शुक्रिया आप सबका, ईटीवी उर्दू मदनी साहब का। जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, सवालात के जवाब देंगे, यकीन ये बसीरत अफरोज लम्हात का सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात करते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और हम, और आज का उन्वान है शब कद्र का ताल्लुक तकदीर से। तो इस मौजू पर सवालात आ रहे हैं, कुछ सवालात हमारे पास बाकी रह गए हैं जिनके जवाब जानते हैं। आइए क्या कहते हैं मुफ्ती साहब। बहन मेहरुन्निसा मुंबई से कॉल कर रही थी, बता रही थी मखसूस अय्याम अगर ताक रातों में आए और ऐसी सूरत में खवातीन किन इबादत का एहतमाम कर सकती हैं, वो क्या करें एक्चुअली? एक सवाल का पहलू हमारा बाकी रह गया था कि बच्चों पर फितरा है या नहीं है। तो आप बुनियादी उसूल जान लीजिए कि ईद उल फितर चांद नजर आने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि नमाज को जाने से पहले, तो उस बच्चे पर का भी फितरा निकालना पड़ेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी निकाले। यहां तक कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ है ईद की नमाज को जाने से पहले, ईद उल फितर तक भी वो शख्स मौजूद, यानी कि चांद नजर आने तक भी मौजूद था, ईद उल फितर की नमाज को जाने से पहले अगर इंतकाल होता है तो उस शख्स का भी फितरा अदा किया जाएगा। उस ड्यूरेशन में जो भी शख्स रहेगा बाहयात, उसका फितरा अदा किया जाएगा। और कहा कि जो औरतें पीरियड में होती हैं, हैज में होती हैं, तो ऐसे पर नमाज तो नहीं पढ़ती, लेकिन शब कदर को किस तरीके से तलाश कर सकती हैं? जाहिर बात है उनको जो कुरान मजीद याद है वो तिलावत कर सकती है, क्योंकि औरत हैज की हालत में कुरान तिलावत ना करे ये हदीस ऑथेंटिक नहीं है। तिलावत कर सकती है जो उनको याद है। अलबत्ता कुरान मजीद को हाथ लगाने के बारे में कहा गया, इस्लाम में ये रूल है और इस्लाम में ये डिसिप्लिन बताया गया कि औरत डायरेक्ट हाथ ना लगाए, और ये एक डिसिप्लिन है। और इसी तरह कई बातें कर सकती है, तस्बीह कर सकती है, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, और इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती है, तालीम हासिल कर सकती है। कुरान मजीद का अक्सर मुसल्लियों को तारुफ नहीं होता। ऐसे ऊपर मैं मस्जिदों के इमामों से या जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको चाहिए कि अपने अपने मस्जिदों में जाकर गुजारिश करें कि कुरान मजीद का हमको तारुफ दे। ये मक्की सूरतें क्या होती हैं, ये मदनी सूरतें क्या होती हैं, 114 सूरतें जो नाजिल हुई ये जमा कैसे किए गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में सहाबा इकराम कुरान मजीद का इस्तेमाल कैसे करते थे, मक्की सूरतों में बेसिक टॉपिक क्या था, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मदनी सूरतों में अंबिया इकराम के किस्से जो बयान किए गए, यानी कि ओवरऑल जो अहम मालूमात है उसको लेने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। और भी हमारे पास एक सवाल बाकी रह गया है, इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देंगे। जी, ज़कात का क्या तरीका है, और जो ताख रातों की इबादतें कोई मखसूस हों तो इसके बारे में भी बताएं, ये भी बाकी रह गया। और ये भी बताएं कि चांद देखना शर्त है या नहीं है फितरा अदा करने के लिए, और दूसरा कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो फितरे की मकदार है वो क्या ख़तई मकदार है, बताएं। जैसा कि इस बहन ने सवाल किया था ज़कात से मुतालिक, तो उनके पास लारी है, इसी तरह ट्रक है, यानी जो भी आप इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जैसे घर में गाड़ी होती है, या इसी तरह आप तिजारत के वक्त के लिए जो इस्तेमाल करते हैं अपने सामान के लिए, लारी वगैरह, तो ये अगरचे के लाखों में होते हैं लेकिन इन पर ज़कात नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सदक़ता अला अब्दिही फी फरसिही व अब्दिही, यानी वो गुलाम जो खिदमत करता है, या इसी तरह वो घोड़ा जो कि बंदे को काम में आता है, इनके ऊपर ज़कात नहीं है। तो इसी से कहा गया कि मकानात पर ज़कात नहीं है, किराए के घरों पर ज़कात नहीं है, गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता इसका जो किराया मिलता है, बसों का किराया मिलता है, या बसों के ऊपर जो उजरत मिलती है, या जो प्रॉफिट आता है, इसके ऊपर बंदा ज़कात देगा अगर वो निसाब तक पहुंच जाए, 87 ग्राम सोने के बराबर अगर पहुंच जाए। जहां तक ये है कि बातें क्या करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में काफी बातें आपको बतला दी हैं। और आपने जो सवाल किया है कि फितरा यानी कितना देना चाहिए, 2.5 किलो आपके पास, इतना 2.5 किलो आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जवारी खाते हैं, जो भी चीज आप खाते हैं, अगर किसी घर में चावल, गेहूं और जवारी तीनों खाई जाती है, और अगर 3 फितरे हैं, उनके घर में 3 अफराद पाए जाते हैं, तो एक चावल का, एक गेहूं का, एक जवारी का निकाल दीजिए। अगर किसी के पास ज्यादा चावल है तो ज्यादा चावल का निकालिए, अगर गेहूं और चावल बराबर है तो गेहूं और चावल दोनों के निकालिए। हर एक पर एक एक फितरा लगेगा। 4 अफराद हैं
اور गेहूं और चावल दोनों खाते हैं तो 2 चावल के निकाले 2 गेहूं के निकाले। गेहूं की हद तक इजाजत है हदीस शरीफ की रोशनी में, अगर आधा फितरा भी दे गेहूं की हद तक सिर्फ तो भी जायज है, यानी अगर कोई 1.25 किलो भी गेहूं देता है तो फितरा अदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मुकम्मल। जी मदनी साहब, ताखरातों की खास कोई इबादत हो तो बता दें। जी, ताक रात में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आपने कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अगर पता चल जाए कि आज शब कदर है तो मैं क्या दुआ पढ़ूं। देखिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला का पूछना खुद इस बात की दलील है कि उन्होंने 27 को खास नहीं किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि जिसके अंदर इस्तग़फ़ार के लिए, माफी के लिए उभारा जा रहा है इस दुआ के अंदर। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि सिर्फ यही दुआ पढ़ना चाहिए, खाली यही रात भर पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और भी आप दुआएं पढ़ सकते हैं, और भी तस्बीह, तहमीद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे आप पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, आप नफली बातें कर सकते हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया मदरी साहब। एक एसएमएस शामिल करते हैं, लिखते हैं सोहेल साहब हैदराबाद से, लैलतुल क़द्र 26वीं रोजे की रात को होती है या 27वीं रोजे की शब? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, यानी कि चांद की बुनियाद पर चूंकि हम चलते हैं, तो पहले रात आती है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक शुरू होता है तो पहले तरावी होती है, फिर उसका सहरी होती है, दूसरे दिन आप रोजा रखते हैं, यानी पहले रात आती है बाद में दिन। इस लिहाज से 26वें तारीख का रोजा खत्म हुआ तो उसके बाद जो रात लगती है तो 27वीं शब आती है, उसके बाद दूसरे दिन 27वां रोजा होता है। इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद चांद पर है। इसकी बड़ी हिकमत और उसका बड़ा फायदा यह है कि सूरज की बुनियाद पर नहीं है, क्योंकि सूरज की बुनियाद पर अगर होता तो हर साल एक ही मौसम में रमजान मुबारक आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चांद की बुनियाद पर होने का फायदा यह है कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी रमजान मुबारक गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बारिश में, एक फायदा। दूसरा फायदा यह है कि सोलर सिस्टम में एक नुकसान यह है कि 365 दिन और पौ दिन होता है, इसी वजह से लीप ईयर मनाया जाता है। 4 साल में एक मरतबा लीप ईयर मनाया जाता है। पौ 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 जमा होने के बाद आप देखते हैं कि फरवरी में बाद औक़ात 4 साल में एक मरतबा 29 तारीख आ जाती है। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम में, क्योंकि इस्लाम में पौ रोजा नहीं है, इस्लाम में मुकम्मल एक दिन का रोजा है, तो सोलर सिस्टम में यह है कि कभी पौ दिन आ सकता है, पौ पौ जमा करके 4 साल में एक दिन होता है। लेकिन चांद वाले कैलेंडर में यह प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इस लिहाज से भी काफी फायदा है चांद के इस सिस्टम से। उम्मीद के भाई का जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदरी साहब। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु से। रहू साहब, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी जी, आज ये किस लोग जी रहू साहब, जी बताइए। जी, अब ये जो ज़कात जो है जी, 1 लाख रुपए को कितने से क्या हिसाब से करना चाहिए? वो नहीं वाज़ेह नहीं हुआ सवाल आपका, बताइए दोबारा। जी, ज़कात जो है, जी ज़कात जो करते हैं वो जी 1 लाख रुपए को किसका कितने हिसाब से करते हैं? 1 लाख पर। अच्छा जी जी। और दूसरा जो है सेहत के वास्ते हमारे बीबी की गुजारिश है। अच्छा जी, सेहत के वास्ते क्या अच्छी दुआ है? अच्छा जी, बेहतर बेहतर साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। मदनी साहब बताएं कि क्या निसाब बनता है, मुख्तसर तौर पर बता दें अमाउंट पर जितनी भी ज़कात दी जाए, और अहलिया की सेहत के सिलसिले में उन्होंने दुआ करने के लिए दरख्वास्त की है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने का निसाब 87 ग्राम है, यानी 7.5 तोला सोना ये सोने का है, और इसी तरह 612 यानी ये ग्राम है चांदी का, जिसको हम कहते हैं 52.5 तोला चांदी। तो अगर आप चांदी का ख्याल करेंगे तो ये अफजल है, लेकिन वाजिब ये है कि आप सोने का हिसाब करके निकालें, यानी 7.5 तोला सोना। अगर अखबार के रेट के हिसाब से आप जाएंगे तो लगभग 10,000 रुपए में 1 तोला सोना आता है। तो इस लिहाज से 7.5 तोला सोने का मतलब है कि लगभग 80,000 में 7.5 तोला सोना आ जाता है। लेकिन आपके पास 1 लाख है, 1.5 लाख है, इसका मतलब है निकला कि आपके पास इतना माल है जिसमें आप 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं। तो गोया कि आप साहिब निसाब हो गए, यानी कि वो कीमत आपके पास है जिस पर ज़कात फर्ज आते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आप इसके मालिक हो, और ये मालिक आप साल भर, यानी कि साल गुजर जाना चाहिए, तो ऐसे वक्त पर आप पर ज़कात फर्ज हो जाती है। तो अगर साल गुजर चुका हो तो ऐसे वक्त पर 100 रुपए पर 2.5 रुपए, 40वां हिस्सा अगर आप निकालेंगे 100 का तो 2.5 रुपए बनता है। 1000 पर 25 रुपए बनते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाइए, इंशाल्लाह आप ज़कात निकाल ले सकते हैं। जहां तक है कि बीमारी, सेहत अगर आप मांगना चाहते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी जब बीमार हो गए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ मांगी, रब्बी इन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़िए। सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके भी आप पी सकते हैं, रोजे की हालत में नहीं, इफ्तार करने के बाद। शुक्रिया मोहतरम। नाज़रीन, प्रोग्राम